Hello everyone. I hope you all are doing well. Today we are going to deal with one of the most important writer, and this writer is very much frequent asked in examination. I mean in NTA UGC NET or the examinations which are very much associated with English literature. Without delay, let's dive deep into today's topic. It's all about Ben Jonson. All right. Ben Jonson is very important writer, and as far as the lifespan of Ben Jonson is concerned, the lifespan of Ben Jonson starts from 1572 to 1637. All right. The real name of Ben Jonson is Benjamin Jonson. All right. And sometimes he was nicknamed as Stone, Stoune, all right? Stone Jonson. So nickname is not that much important, but the full name of Ben Jonson is very important. Ben Jonson becomes very important, and generally he belongs to Elizabethan era. He is a writer who belongs to Elizabethan era. But there is a speciality associated with Ben Jonson, and that speciality is, let me write the this duration of Elizabethan era. It starts from 1558 to 1603. Okay. Ben Jonson जो थे, उनका बर्थ एलिजाबेथन एज में हुआ और उनका जो लिटरेरी करियर पीक में था, दैट वाज इन द एज ऑफ जैकोबियन era. All right. And he died in Caroline era. All right. So तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो बेन जॉनसन है, उनका बर्थ एलिजाबेथन एज में हुआ, उनका जो लिटरेरी करियर था दैट वाज फ्लॉरिश्ड इन जैकोबियन एज, एंड फाइनली ही डाइड इन कैरोलिन era. Okay. What is the importance of Ben Jonson in Elizabethan era or English literature? Actually, he has given birth to a special kind of comedy, and that comedy is called as comedy of humors. All right. Comedy of humors. Ben Jonson is celebrated as the father of comedy of humors. All right. अब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का मतलब क्या है? ह्यूमर्स का जो ऑरिजिन है दैट इज फ्रॉम लैटिन, एंड इसका इंग्लिश मीनिंग जो है दैट इज लिक्विड. अब बेन जॉनसन क्या कहते हैं अपने वर्क्स के अंदर कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं दे आर ओवर पावर्ड, आर ओवर ट्रीटेड बाय सम लिक्विड्स और सम फ्लूइड्स. जब भी इनके कैरेक्टर्स में कोई ऐसी बात आपको दिखती है, कोई फ्लैक्चुएशन लैंग्वेज में दिखी या कोई ट्रेट उनको ओवर पावर कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम बैलेंस इन, देयर इज सम इम्बैलेंस इन द ह्यूमर्स. ऑल राइट. और वो ह्यूमर्स क्या है वो आपको मालूम होने चाहिए. वो ह्यूमर्स क्या है? फर्स्ट इज ब्लड, देन फेलम, देन येलो बॉयल, एंड फाइनली इट्स ब्लैक बॉयल. येलो बॉयल को कॉलर भी कहा जाता है और ब्लैक बॉयल को मेलनकली भी कहा जाता है. ऑल राइट. सो दीज आर ह्यूमर्स, दीज आर सर्टेन फ्लूइड्स अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन. इसीलिए उनको फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहा जाता है. ओके. Ben Jonson was very much read person. Actually, he followed the classicals. He followed classical writers. He was ardent follower of classical writers. All right. And he said that drama should be based on classical writers, and it should be a rationalistic depiction of
द इरा, ऑल राइट। बेन जॉनसन बोलते हैं कि जो ड्रामा है दैट शुड बी बेस्ड ऑन क्लासिकल राइटर्स एंड इट शुड बी द एग्जैक्ट और द rationalistic depiction of the era in which it is prevailing, all right. Next important fact Ben Jonson से associated क्या है? He followed all three classical unities, all right. He followed all three classical यूनिटीज, ऑल राइट। इसने तीनों यूनिटीज को फॉलो किया है। शेक्सपियर ने 2 यूनिटीज को फॉलो किया है, बाकियों को नहीं करा है, बट he followed all 3 classical unities: the unity of time, the unity of place, the unity of action, all right. so question एग्जाम में बन सकता है कि क्या बेन जॉनसन ने तीनों यूनिटीज को फॉलो करा है या नहीं करा है? तो हाँ जी, इन्होंने तीनों यूनिटीज को फॉलो करा है, ऑल राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एसोसिएटेड विद बेन जॉनसन इज दैट देयर इज अ पर्टिकुलर ट्राइब और अ ग्रुप ऑफ पोएट्स जिनको सन्स ऑफ बेन कहा जाता है, या ऑल्टरनेटिवली दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज द ट्राइब ऑफ बेन, आई मीन ट्राइब ऑफ बेन जॉनसन, या को सन्स ऑफ बेन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में आ चुका है। सो ट्राइब ऑफ बेन के अंदर वो सारे राइटर्स हैं जो किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? कैवलियर स्कूल ऑफ पोइट्री के साथ, कैवलियर स्कूल ऑफ पोइट्री, या आप इनको सिंपली कैवलियर पोइट्स भी कह सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैवलियर पोइट्स में कौन कौन आपके मेजर पोइट हैं। फर्स्ट इज रॉबर्ट हैरिक, देन सर जॉन सकलिंग, देन रिचर्ड लवलेस, एंड लास्ट वन इज टॉमस क्रू, ओके। ये सारा जो ग्रुप है दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज कैवलियर पोइट्स। आपको मालूम होना चाहिए कि 17th सेंचुरी के अंदर 2 पॉपुलर ग्रुप्स ऑफ पोइट्स हुए हैं। फर्स्ट इज मेटाफिजिकल्स एंड सेकंड इज कैवलियर्स। तो कैवलियर्स जो थे दे वर कॉल्ड एज ट्राइब ऑफ बेन और द सन्स ऑफ बेन बिकॉज दे यूज टू इमिटेट द राइटिंग स्टाइल ऑफ बेन जॉनसन, ओके गुड। मेटाफिजिकल्स हम अलग से करेंगे। अच्छा जी, बेन जॉनसन जो थे ही वॉज वेरी मच फैसिनेटेड बाय विलियम शेक्सपियर एंड देर आर सर्टेन critical comments made by Ben Jonson in favor of Shakespeare, all right. First is there is much to praise and less to be pardoned, all right. Shakespeare was not of an age but of all ages. This is a statement made by Ben Jonson in favor of Shakespeare, all right. Next statement is in accordance to the art of William Shakespeare. Ben Jonson said that Shakespeare is having a wanted art. Wanted art means he lacks skill, all right. So this is the statement made by, these are certain statements made by Ben Jonson in favor of William Shakespeare. And as you know, William Shakespeare was called as Swan or the Bard of Avon. He was called as Swan or Bard of Avon. Avon is name of river, I guess, and Bard is a person who is very much learnt. He's a learnt man. तो स्वान और बार्ड ऑफ एवॉन भी एक स्टेटमेंट है जो बेन जॉनसन ने किसके लिए बोली थी? शेक्सपियर के लिए बोली थी, ऑल राइट. सो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको ध्यान में रखनी है किसको लेके, बेन जॉनसन को लेके. क्रिटिकल कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ही वॉज रेफर्ड एज अ फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, और ट्राइब ऑफ बेन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एक क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि व्हाट इज़ द ग्रेवयार्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द ग्रेव ऑफ बेन जॉनसन. इट इज़ ओ रेयर
O'Rear Ben Jonson. O'Rear Ben Jonson is an inscription, or you can say epitaph of Ben Jonson written on the graveyard stone. So these are certain very important and subtle nuances in context of Ben Jonson. You have to keep all such detail in your primary conscience from the perspective of एग्जामिनेशन. और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्क्स करेंगे. तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेहनत करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर करना ना भूलें. थैंक यू एंड बाय बाय.